नमस्कार, जय हिंद। भारत तक का खास शो मित्र देश देख रहे हैं आप और मैं हूं आयुष। जब बात भारत के आम नागरिक की होती है तो कोई भी फैसला सिर्फ कूटनीति तक जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरत और जमीन की सच्चाई के आधार पर होता है। और इस बार फिर भारत ने यही किया। अमेरिका चाहे जितना भी दबाव बनाए, भारत रूस से सस्ता तेल खरीदना जारी रखेगा, क्योंकि देश हित से बड़ा कोई विदेशी एजेंडा नहीं होता। दरअसल भारत ने ऐलान किया कि वो जिस देश से चाहेगा उस देश से तेल खरीदेगा, वो भी सस्ते दामों पर। अब यह बयान दिया है भारत के केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने, और साफ संकेत दे दिया गया है कि भारत झुकेगा नहीं, वो झुका कर रहेगा, वो चाहे कितना भी शक्तिशाली देश सामने क्यों न खड़ा हो। दरअसल हाल ही में अमेरिका ने एक बयान दिया कि जो देश रूस से तेल खरीदेगा उस पर टैक्स लगा दिए जाएंगे, वो भी 500% का। और फिर क्या था, भारत ने 56 इंच की छाती ठोकी और दे दिया संकेतों में बिना अमेरिका का नाम लिए जवाब। अब आप खुद सुनिए क्या कहा भारत के केंद्रीय और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अपने बयान में। Today, Russia is one of the main suppliers. I don't know what the figures were in 2022. Today, I think they produce about 9 million barrels a day. 9 million barrels a day, madam, is roughly 10% of the global production per day and consumption per day. I ask you a hypothetical question. Supposing you take 10% of the consumption off the table. There are two possibilities. One, the rest of the world, the whole world, stops consuming or consumes 10% less, which means what? Which means in a country, let's say, I can pick up any country, some people won't get heating in winter, some people won't get air conditioning in summer, some of the transport will stop flying. So 10% consumption reduction is not an easy thing, or something else will happen. You decide that 10% is going off the market, you don't want to reduce consumption, then you start buying more from the remaining 90%. You know what that would do to prices? The prices which were here would skyrocket. We did an analysis, my secretary who's sitting here and some of my other colleagues, that if more and more people were to buy from the other OPEC sources, you know what would have happened? Prices would have gone up minimum to $130, $140 a barrel. So if we were buying from any source that we could, I think we should be applauded. अब आपने ये शानदार और धारदार बयान तो सुन ही लिया। अब जानते हैं अमेरिकी धमकी और सेकेंडरी टैक्स क्या है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से रूस को लेकर पूरी दुनिया पर दबाव बनाने की कोशिश की। बयान दिया गया कि अगर कोई देश रूस से तेल खरीदेगा तो उस पर सेकेंडरी टैक्स लगाया जाएगा। अब सवाल ये उठ रहा है कि सेकेंडरी टैक्स आखिर होता क्या है और इसका भारत जैसे विकासशील देश पर क्या असर पड़ सकता है। दरअसल सेकेंडरी टैक्स यानी अमेरिका अपने कानूनों का इस्तेमाल करके उन देशों या कंपनियों पर कार्रवाई करता है जो रूस के साथ व्यापार करेगा। इसका असर भारत के रिफाइनर, बैंक और एक्सपोर्ट पर पड़ सकता है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि हम अपनी नीति अपने उपभोक्ता के हित में बनाएंगे, किसी देश के दबाव में नहीं बनाएंगे। अब एक बार फिर से पूरा बयान सुनिए केंद्रीय मंत्री का। But I'd like to have a discussion with you on the hard facts. First and foremost, what are the facts? In February 2022, when the military conflict between Russia and the Ukraine commenced, we were buying, if I remember, 0.2% of our overall crude from the Russian Federation. Today, yes, you are absolutely right, it has gone up considerably. But equally, during this period, India has diversified the sources of supply, and we have gone, I think, from about 27 countries that we used to buy from to about 40 countries now. But more than that, if you go into should you buy from a source 1 or should you buy from a source 2, we have been clear from the day go that we will buy from wherever we have to. Because the Prime Minister's commitment is, in the final analysis,
to his consumer, to the Indian consumer. यह बयान आया केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का एक दमदार, तथ्यात्मक और आत्मविश्वास से भरा स्टेटमेंट। उन्होंने यह भी कहा कि भारत की एनर्जी ग्रोथ 10 सालों में 16% रही और अगले 20 सालों में यह 25% तक पहुंच सकती है। इस वक्त भारत रूस से करीब 33% कच्चा तेल खरीद रहा है, जो 2021 में सिर्फ 1% था। अब बात करते हैं अमेरिका की रणनीति की, तो ट्रंप ने यह भी कहा कि रूस से आने वाली हर वस्तु पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। रूस को युद्ध रोकने के लिए 50 दिन का अल्टीमेटम यानी कि डेडलाइन दिया गया है। यह एक तरीके की ग्लोबल ब्लैकमेल है, क्योंकि इसके पीछे अमेरिका की अपनी रणनीतिक मजबूरी है। तेल के दामों को कंट्रोल में रखना, रूस की आय को काटना और नाटो सहयोगियों को भरोसे में लेना। लेकिन भारत इस खेल का हिस्सा नहीं है, बल्कि भारत ऊर्जा नीति को कूटनीति का मोहरा नहीं बनने देगा। भारत का स्पष्ट और साफ कहना है कि रूस को तेल बाजार से पूरी तरह बाहर करना संभव नहीं है, क्योंकि वो दुनिया की खपत का 10% सप्लाई करता है। अगर रूस हटेगा तो केवल 90% मार्केट से ही सारी दुनिया को तेल खरीदना पड़ जाएगा। इससे तेल के दाम आसमान पर चले जाएंगे, जिसका सीधा असर भारत के मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास और गरीब वर्ग पर सीधा असर हो जाएगा। सर्दियों में हीटिंग, गर्मियों में एसी, ये सब महंगे हो जाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी, महंगाई की नई लहर आ जाएगी। भारत अमेरिका की धमकी से डरता नहीं है, लेकिन उसे नजरअंदाज भी नहीं कर रहा। सरकार 2 बड़े काम कर रही है। पहला काम है वेस्ट एशिया से अतिरिक्त तेल की आपूर्ति की तैयारी। दूसरा है ब्राजील और अफ्रीका जैसे देशों के साथ एनर्जी डायलॉग। भारत की रणनीति मल्टी सोर्स एनर्जी सिक्योरिटी की है, केवल रूस पर निर्भरता नहीं, लेकिन सस्ते स्रोत का त्याग भी नहीं। यह एक परिपक्व और व्यवहारिक नीति है, जिसे कोई भी ग्लोबल पावर चुनौती नहीं दे सकता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो महीने के खर्च में तेल के दाम देखकर परेशान हो जाते हैं। एक बाइक राइडर, एक ऑटो वाला या घर में सिलेंडर भरवाने वाली गृहिणी। अगर भारत रूसी तेल से हाथ खींचता है तो हर लीटर पर 10 से 15 रुपए तक का फर्क पड़ जाएगा। और जब बात देश की 140 करोड़ की आबादी की हो, तो मोदी सरकार को हर फैसले में भारतीय हित देखना ही होगा। तो सवाल यह है कि अगर अमेरिका भारत पर सेकेंडरी टैक्स लगा देता है तो क्या होगा? दरअसल यह होगा कि भारत को एक्सपोर्ट में नुकसान हो सकता है, तेल कंपनियों के ट्रांजैक्शन मुश्किल हो जाएंगे, लेकिन भारत को झुकना नहीं चाहिए अगर ऐसा होता है तो। और अभी तक सरकार ने यही दिखाया है, अपना स्टैंड साफ रखा है। भारत सरकार का रुख साफ है कि हम दबाव में फैसले नहीं लेते, तर्क और हित में लेते हैं। खैर गुरु, कुल मिलाकर भारत ने अमेरिका और यूरोप दोनों से रिश्ते संभाले हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो अपनी स्वतंत्र नीति को गिरवी रख दे। अगर यूरोप खुद रूस से गैस ले सकता है, अगर नाटो देश छुपकर ट्रेड कर सकते हैं, तो भारत क्यों नहीं? ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। अमेरिका, भारत अपने संसाधनों की सुरक्षा करेगा, अपने नागरिकों की भलाई के लिए जो चाहेगा वो करेगा। आज जब भारत दुनिया की सबसे बड़ी ऊर्जा ग्रोथ इकोनॉमी बनने की राह पर है, तो उसे यह तय करने का पूरा अधिकार है कि वो तेल कहां से ले, कितना सस्ता ले। अमेरिका की धमकियों से डरकर नहीं, बल्कि रूसी सहयोग से चिपककर नहीं, बल्कि देश हित और संतुलन के साथ। और यही है मित्र देश का साफ संदेश कि देश पहले, बाकी कुछ बाद में। मिलते हैं मित्र देश के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।